Hello, welcome to Light Classes. Now, in previous two videos, we have discussed about Kingdom Monera and Kingdom Protista, but we can't able to complete all the MCQs based on Kingdom Protista. So, some MCQs were remaining from So, we will see in this video about some points remaining about Kingdom Protista, and then we begins with Kingdom Fungi. Okay. So, here the question about Kingdom Protista is dash is the parasite of large intestine of human being and causes the diseases amoeboic dysentery. मतलब ऐसे कौन से पैरासाइट्स है जो ह्यूमन इंटेस्टाइन में रहते हैं और अमीबिक डिसेंट्री कॉज करते हैं. सो वी नो दैट एंटामीबा हिस्टोलिटिका इज द साइंटिफिक नेम ऑफ द पैरासिटिक इंटेस्टिनल organism which causes the intestinal disease in human being. So the answer is Entamoeba histolytica. It is scientific name. So the capital letter of genus is capital and the species first initial is a smaller. So the answer is Entamoeba histolytica. Now the next question you can see here, the causal organism of sleeping sickness and Kala Azar belong to which of the following group of प्रोटोजोन्स प्रोटिस्ट. मतलब ऐसे कौन से ऑर्गेनिजम्स है जो स्लीपिंग सिकनेस और काला आजार नाम की बीमारियां कॉज कर सकते हैं और उनको प्रोटोजोन्स में कौन से ग्रुप में दिया गया है. मीन्स वी नो दैट वी हैव सीन अबाउट द प्रोटोजोन्स, different types of protozoans, that is amoeboid protozoans, flagellated protozoans, ciliated protozoans and sporozoans. If we talked about, अगर हम amoeboid protozoans के बारे में देखें तो उसका एग्जाम्पल एंटामीबा हिस्टोलिटिका है. अगर हम फ्लैजेलेटेड प्रोटोजोन्स के बारे में देखें तो उसका एग्जाम्पल ट्रिपैनोसोमा है. और अगर सिलिएटेड प्रोटोजोन्स के बारे में देखें तो उसका एग्जाम्पल पैरामेशिया है. एंड वन मोर class of protozoans और group of protozoans are sporozoans. अगर हम उसका एग्जाम्पल देखें तो Plasmodium vivax, the malaria causing disease or the organism is involved in sporozoans. Okay. तो अगर हम फ्लैजेलेटेड प्रोटोजोन्स, यहाँ पर क्या बताया गया है, स्लीपिंग सिकनेस और काला आजार कौन से ऑर्गेनिजम्स या फिर ग्रुप ऑफ प्रोटोजोन्स को बिलोंग करते हैं. सो वी नो दैट द group this flagella or sleeping sickness or kala azar name disease is caused by trypanosoma. It is either free living or parasitic and they are flagellated. This sleeping sickness and kala azar is caused by the trypanosoma. Organism name is trypanosoma and that organism is flagellated. Means that organism is having flagella, so is known as a flagellated protozoans. So the answer is sleeping sickness and kala azar is caused due to trypanosoma and it's belong to flagellated protozoans. Okay. The next question is identify the figure of the protozoan protist and select the correct option. Here you will have many options such as trypanosoma, paramecium, entamoeba histolytica or Plasmodium vivax, etc. But here you can see the structure of trypanosoma. So the scientific name of trypanosoma is Trypanosoma gambins. Means genus name Trypanosoma and gambins is a species name. So this figure is of Trypanosoma. Okay. The next question is dash is ciliated protozoans. We have seen different four types of protozoans, that is amoeboid protozoans, flagellated protozoans, ciliated protozoans and sporozoans. मतलब हमने चार डिफरेंट टाइप के प्रोटोजोन्स देखे थे, अमीबॉइड प्रोटोजोन्स, फ्लैजेलेटेड प्रोटोजोन्स एंड सिलिएटेड प्रोटोजोन्स एज वेल एज स्पोरोजोन्स. ये चारों भी जो प्रोटोजोन्स है उनके एग्जाम्पल याद रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज उस पर डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस आते हैं. जैसे कि अभी यहाँ पर पूछा गया था कि ऐसे स्लीपिंग सिकनेस और काला आजार नाम के कौन से मीन्स कौन से प्रोटोजोन्स है जो कौन से ग्रुप में इन्वॉल्व किए गए थे, या फिर
ऐसा कौन सा इंटेस्टिनल पैरासाइट है जो इंटेस्टाइन में ह्यूमन को कॉज करता है एमीबॉइड डिसेंट्री, या फिर यहाँ पर दिया गया है सिलिएटेड प्रोटोजोन्स किसे कहते हैं. वी नो दैट द पैरामीशियम कंटेन्स अ मेनी सीलिया ऑन देयर बॉडी. वाई वी कॉल इट एज अ सिलिएटेड प्रोटोजोन्स. पैरामीशिया को हम सिलिएटेड प्रोटोजोन्स किस लिए कहते हैं, बिकॉज उसके बॉडी पे बहुत सारे सीलिया प्रेजेंट है फॉर द लोकोमोशन. ओके, सो dash is the ciliated protozoan, so we will write Paramecium caudatum is a ciliated protozoan. It is the scientific name of Paramecium. Okay, now what is given here? Next question, refer to the given figure of Paramecium caudatum and select the option that correctly identify A, B, C and D. Means यहाँ पर लेबलिंग दी है, डायग्राम दी गई है और लेबलिंग दी गई है. We have to identify कौन सा पार्ट है, A पार्ट कौन सा है, B पार्ट कौन सा है, C पार्ट कौन सा है और D पार्ट कौन सा है. We have to identify the labels. Okay, now if we talked about A part, here you can see the wall. A part is indicating the wall of Paramecium. So we have seen the wall of Paramecium is nothing but the made up of pellicle which makes the body flexible. Pellicle एक प्रोटीन रिच मॉलिक्यूल होता है पैरामीशियम के बॉडी के ऊपर जो उसकी बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाता है. सो इफ वी हैव टू लेबल दिस ए पार्ट देन इट इज़ नथिंग बट द पेलिकल. ओके, एंड इफ वी टॉक्ड अबाउट द बी पार्ट of Paramecium, here you can see it is a labeling of cilia, means the locomotory organ of Paramecium. So B is nothing but the cilia, means the locomotory organ. The C part, now here you can see the C part. What is C part? Here you can see inside the internal structure of Paramecium under the microscope, then you can see two nucleus. Means Paramecium is an organism consists of two nucleus, that is a larger nucleus and one is smaller nucleus. Here you can't say it is a smaller nucleus, it is a larger nucleus, but it is having a scientific name, that is a macronucleus and micronucleus. Micro means a smaller nucleus and macro means a larger nucleus. So the C part is a macronucleus. Macronucleus. Okay, now the D part. We have discussed about that the opening or the gullet is formed in an organism known as cytostome. So D is a cytostome. It is an opening of an organism. Okay, now the next question. Here you can see pellicle, cilia, macronucleus and cytostome. So you have to select the option pellicle, cilia, macronucleus as well as cytostome. Okay, now the next question is the sporozoans are all internal dash that typically have an infective cyst stage in their life cycle. An example of sporozoan is genus dash which causes the malaria. You have to select the answer parasites and plasmodium because sporozoan is a parasitic organism which causes internally infection. And if we talked about plasmodium which cause malaria, if we talked about the malaria, malarial parasite have the infective stage which involves the cyst. So स्पोरोजोन एक पैरासिटिक ऑर्गेनिज्म है जो इंटरनली इन्फेक्ट करता है बॉडी के होस्ट को. एंड अगर मलेरिया की बात की जाए ऐसे स्पोरोजोन जो मलेरिया कॉज कर सकते हैं देन दे आर नथिंग बट द प्लाज्मोडियम वाइवैक्स और दे आर हैविंग डिफरेंट स्पेसिस एंड दे आर इन्फेक्टिव. लाइफ स्टेज में उनकी जो इन्फेक्टिव स्टेज होती है वो सिस्ट होती है. दे फॉर्म सिस्ट टू इन्फेक्ट एन ऑर्गेनिज्म. ओके, यहाँ पर 51 नंबर के MCQs में we have seen that there were the two options. You have to select a correct option. They may be a parasite but you have given a different option for the diseases. You have to remember sporozoan एक parasitic organisms होते हैं और जो मलेरिया अगर मलेरिया का दिया गया है then you have to write plasmodium. Okay, now the next question, which is the mismatch pair प्रोटोजोन्स ग्रुप. ओके, प्रोटोजोन ग्रुप में ये कौन सी एक मिसमैच पेयर है.
सो वी हैव टू सी, हमें पता है अमीबॉइड प्रोटोजोन्स, एंटामीबा हिस्टोलिटिका है, फ्लैजेलेटेड प्रोटोजोन गियार्डिया इंटेस्टाइनलिस है, सिलिएटेड प्रोटोजोन्स पैरामेशियम कॉर्डेटम है, बट वी हैवंट सीन अबाउट द स्पोरोजोन। स्पोरोजोन कौन सा है? प्लाज्मोडियम वाइवैक्स और प्लाज्मोडियम की दूसरी कोई स्पेसीज, ओके। बट यहाँ पर स्पोरोजोन को क्या दिया गया है? लिशमैनिया डोनावानी। और इस लिशमैनिया डोनावानी वी हैवंट सीन अबाउट द लिशमैनिया डोनावानी। अगर स्पोरोजोन आता है तो यहाँ पर पेयर प्लाज्मोडियम वाइवैक्स चाहिए, बट यहाँ पर जो मिसमैच पेयर है, जो रॉन्ग पेयर है, वो क्या है? स्पोरोजोन लिशमैनिया। सिलिएटेड प्रोटोजोन पैरामेशियम कॉर्डेटम है, फ्लैजेलेटेड प्रोटोजोन ग्राइडेरिया इंटेस्टाइनलिस है, और अमीबिएट प्रोटोजोन्स एंटामीबा हिस्टोलिटिका है, ओके। So now we will begin with our kingdom fungi. So the first MCQ of kingdom fungi is eukaryotic, achlorophyllous and heterotrophic organisms are grouped under which of the kingdom? ऐसे कौन से ऑर्गेनिज्म है जो यूकैरियोटिक है, मीन्स उनका न्यूक्लियस वेल डेवलप है, as well as they are having nuclear membrane. Achlorophyllous means they are not containing chlorophyll in their body, means they are heterotrophic organisms, they does not performs autotropic. ऐसे organisms जिनके अंदर chlorophyll pigment present नहीं है, means they are heterotrophic organisms, okay. ऐसे कौन से kingdom में आते हैं organism? अगर question आता है then kingdom fungi, okay. Now the second question is coinocytic mycelium is dash, okay. मतलब कोइनोसाइटिक माइसेलियम, वी हैव सीन इन द स्ट्रक्चर दैट कोइनोसाइटिक माइसेलियम किसे कहते हैं? इफ यू टॉक्ट अबाउट द माइसेलियम, वी हैव सीन द स्ट्रक्चर ऑफ माइसेलियम, ओके। वी हैव सीन दिस वे स्ट्रक्चर ऑफ माइसेलियम, सो ब्रांचेस, filamentous structure or the network of hyphae. We have seen this part is known as a hyphae, okay. हमने देखा था डायग्राम में, ये पार्ट को क्या कहते हैं? हाइफी। जब ये हाइफी के नेटवर्क्स फॉर्म होते हैं उससे क्या कहते हैं? माइसेलियम। वी हैव सीन द डिटेल डायग्राम ऑफ हाइफी एंड माइसेलियम। जब ये हाइफी के नेटवर्क्स फॉर्म होते हैं तब वो क्या बनता है? माइसेलियम बनता है। बट ऐसा माइसेलियम या फिर ऐसा हाइफी जो पूरा न्यूक्लियस से या फिर कुछ साइटोप्लाज्म से फिल्ड हो, ऐसा हाइफी या फिर ऐसे माइसेलियम जो पूरे साइटोप्लाज्म से फिल्ड हो और उसमें कैसे मल्टी न्यूक्लियस प्रेजेंट हो, मीन्स दे आर मल्टी न्यूक्लिएटेड, तो ऐसे हाइफी को क्या कहते हैं? कोइनोसाइटिक। ऐसे हाइफी को क्या कहते हैं? कोइनोसाइटिक। तो यहाँ पर क्या पूछा गया है? कोइनोसाइटिक माइसेलियम इज डैश। So we know that they are multinucleated, but we have seen about the कोइनोसाइटिक अगर हो तो वो कैसे होते हैं? असेप्टेड। इफ़ वी टॉक्ड अबाउट कोइनोसाइटिक माइसेलियम देन दे आर असेप्टेड। मैंने डायग्राम में भी आप सबको बताया था कि कैसे कोई असेप्टेड कैसे होते हैं और सेप्टेड कैसे होते हैं। इफ़ वी टॉक्ड अबाउट सेप्टेड तो वो ऐसे होते हैं, मीन्स उनमें गैप प्रेजेंट होता है, या यू कैन सी अ गैप। सेप्टेड की अगर हम बात करें तो वो ऐसे होते हैं, अगर हम असेप्टेड की बात करें तो वो ऐसे होते हैं, मीन्स वी कांट डिस्टिंग्विश बिटवीन देयर पार्ट्स। असेप्टेड मीन्स ऐसे और सेप्टेड मीन्स ऐसे, ओके। वी कैन डिस्टिंग्विश देयर ब्रांचेस और देयर नेटवर्क्स, ओके। तो इसे क्या कहेंगे? कोइनोसाइटिक mycelium is multinucleated, they are having multinucleus in their hyphae as well as they are aseptate, means कैसे है वो? ऐसे है, means we can't distinguish between their branches, okay. If we talked about the next MCQ, the next MCQ is main component of cell wall of fungi is dash, means fungi के सेल का जो main component उसका protective part क्या है? तो we know that we have seen that cell wall of fungi is made up of chitin as well as polysaccharides, but here it is optional, is given that there is just a chitin, means
अगर फंगाई के सेल वॉल के बारे में क्वेश्चन आता है और वहाँ पर काइटिन प्रेजेंट नहीं है ऑप्शन में, देन यू हैव टू राइट पॉलीसेकेराइड, ओके। और अगर पॉलीसेकेराइड नहीं है, काइटिन है, देन यू हैव टू राइट काइटिन, और एल्स वहाँ पर ऑप्शन काइटिन भी आ सकता है, पॉलीसेकेराइड भी आ सकता है, अनदर वन दूसरा कोई प्रोटीन का नाम आ सकता है, और एक ऑप्शन ऐसे भी होगा बोथ फर्स्ट एंड सेकंड मीन्स काइटिन एज वेल एज पॉलीसेकेराइड। सो यू हैव टू रिमेंबर कि सेल वॉल फंगस की कैसी बनी होती है, काइटिन एज वेल एज पॉलीसेकेराइड्स, ओके। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फंगाई शोज असेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय ऑल ऑफ द फॉलोइंग काइंड ऑफ स्पोर्स एक्सेप्ट, मतलब हमने देखे थे असेक्सुअल मीन्स फंगस को कैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है फंगस का, 3 टाइप से होता है, जैसे कि वेजिटेटिव मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन एज वेल एज सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन फंगस। सो वी हैव डिस्कस्ड अबाउट ऑल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन in fungus, as well as we have discussed if they reproduce by vegetative mean, they reproduce such as fragmentation, fission and budding, okay. If they reproduce by asexual means they form a spore, बट यह द क्वेश्चन अराइजेस, यहाँ पर क्या क्वेश्चन है, वो असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में कौन से काइंड होते हैं स्पोर्स के एक्सेप्ट, मतलब इसमें सेक्सुअल मोड का एक एग्जाम्पल दिया गया है डिफरेंट स्पोर का, ओके। तो यहाँ पर हमने देखे थे असेक्सुअल मोड से अगर रिप्रोड्यूस करते हैं वो तो कैसे स्पोर्स फॉर्म करते हैं, कोनिडिया फॉर्म करते हैं, स्पोरेंजियोस्पोर्स फॉर्म करते हैं, जूस्पोर्स और अप्लानोस्पोर्स फॉर्म करते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 3 टाइप के स्पोर्स फॉर्म करते हैं, oospores, ascospores and basidospores. So the answer is oospores because we are saying about the asexual reproduction. So conidiospore, sporangiospores, zoospore as well as aplanospores are the spores formed by asexual reproduction, and oospores, ascospores and basidospores are formed by sexual reproduction, okay. So we will see about the next MCQ. So here the next question is about the sexual reproduction in fungi occur by all the following except, मतलब sexual reproduction में spores कैसे form होते हैं except. So we have seen that asexual reproduction में कौन से spores form होते हैं, conidia, sporangiospores, zoospores and aplanospores, and we know that sexual reproduction में कौन से spores form होते हैं, oospores, ascospores and basidospores. So the answer is zoospore because वो asexual reproduction में form होते हैं, okay. Now the next question is dikaryophase is a specific characteristics of, dikaryon phase is a specific character of a phase, मतलब क्या, उनकी जो साइकिल है रिप्रोडक्शन की साइकिल है स्पोर फॉर्म करने की फंगाई की, वो कैसी है, एस्कोस्पोर्स और बेसिडोस्पोर्स में डाइकैरियन फेज प्रेजेंट होता है। वी हैव सीन द एक्सेप्शनल केसेस, वी हैव सीन हाउ दे रिप्रोड्यूस और हाउ दे फॉर्म अ स्पोर्स। सो वी हैव सीन फर्स्ट दे फॉर्म अ हाइफी, हाइफी से माइसिलियम बनता है, माइसिलियम से प्लाज्मोगैमी होती है मीन्स उनका प्रोटोप्लाज्म मिक्स होता है। उसके बाद कैरियोगैमी होती है, जो न्यूक्लियर मटेरियल है उनका जो न्यूक्लियस है वो फ्यूज्ड होता है। उसके बाद मियोसिस होती है, रिडक्शनल डिवीजन होती है, स्पोर्स डिवाइड होते हैं, देन स्पोर्स गेट जर्मिनेटेड एंड अनदर वन अगेन दे गोज टू द हाइफी, ओके। हमने ये एक जनरल फंगाई के रिप्रोडक्शन के बारे में देखे थे कि वो कैसे स्पोर फॉर्म करते हैं, लेकिन अगर हम अब एस्कोमाइसिटीज और बेसिडोमाइसिटीज के एक्सेप्शनल देखे थे कि ये 2 केसेस में रिप्रोडक्शन कैसे होता है, तो ये 2 केसेस में एक एडिशनल स्टेज आती है डाइकैरियन फेज। अगर हम कैरियन की बात करें तो कैरियन का मतलब क्या होता है, न्यूक्लियस, मतलब 2 न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं। डाई मीन्स 2 एंड कैरियन मीन्स न्यूक्लियस। सो डाइकैरियन का मतलब क्या होता है, 2 न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, ऐसी फेज। तो एस्कोमाइसिटीज और बेसिडोमाइसिटीज में प्लाज्मोगैमी के बाद कौन सी फेज आती है, डाइकैरियन फेज। उसके बाद कैरियोगैमी आती है। मतलब क्या, प्लाज्मोगैमी में क्या होता है, सिर्फ प्रोटोप्लाज्म, यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर सिर्फ न्यूक्लियस प्रेजेंट है। प्लाज्मोगैमी में क्या होता है, उनका प्रोटोप्लाज्म मिक्स होता है। फिर
मीन्स ये यहाँ पर एक सेल पूरा फ्यूज्ड हो गया, यहाँ पर न्यूक्लियर मटेरियल प्रेजेंट होगा बट कैसे, सेपरेट, अभी तक न्यूक्लियर मटेरियल फ्यूज नहीं हुआ है। तो ये फेज़ को क्या कहेंगे, मतलब ये फेज़ में तुम देख रहे हो कि दो न्यूक्लियस प्रेजेंट है सेपरेट, दे आर नॉट फ्यूज्ड विथ ईच अदर, तो इसको क्या कहेंगे, डाइकैरियन फेज। और अगर ये फेज में फर्दर डाइकैरियन के बाद क्या है, यहाँ पर न्यूक्लियस फ्यूज होते हैं, मीन्स यू कैन सी और टू न्यूक्लियस विच आर फ्यूज टुगेदर नोन एज अ कैरियोगैमी। फिर उसके बाद मियोसिस होगी, रिडक्शनल डिवीजन होगा, स्पोर्स को डिवाइड करेंगे, देन दे फॉर्म्स अ स्पोर्स। ओके, ये प्रोसेस होती है। तो हमने देखा कि एस्कोमाइसिटीज जनरली वी हैव सीन प्लाज्मोगैमी होती है, प्लाज्मोगैमी के बाद कैरियोगैमी होती है, कैरियोगैमी के बाद डायरेक्टली मियोसिस और स्पोर फॉर्म होते हैं। बट एस्कोमाइसिटीज और बेसिडोमाइसिटीज में दो एक एक्सेप्शनल केस है कि उसमें प्लाज्मोगैमी और कैरियोगैमी के बीच में डाइकैरियन फेज प्रेजेंट होता है। मींस डायरेक्टली प्लाज्मोगैमी के बाद न्यूक्लियर मटेरियल फ्यूज नहीं होता बट दे रिमेन सेपरेटेड इन अ सेल। ओके, so we will move further towards the next question. So given is the representation of life cycle of member of class Ascomycetes and Basidomycetes. Select the correct option for process A, B and C. मतलब यहाँ पर लाइफ साइकिल दी गई है एस्कोमाइसिटीज और बेसिडोमाइसिटीज की, और हमें ए, बी और सी जो प्रोसेस है आगे की वो बतानी है कि कौन सी है। नाउ वी नो दैट हैप्लोफेज के बाद हैप्लोफेज माइसेलियम, मतलब हाइफी के बाद माइसेलियम में कन्वर्जन होता है, दे फॉर्म्स अ नेटवर्क ऑफ हाइफी। फिर उसके बाद फर्स्ट स्टेज क्या होती है, यहाँ पर ए के टाइम पे क्या आएगा, प्लाज्मोगैमी। फर्स्ट स्टेज कौन सी होती है, प्लाज्मोगैमी। देन वी नो दैट इन एक्सेप्शन केसेस दैट एस्कोमाइसिटीज और बेसिडोमाइसिटीज में डाइकैरियोनिक फेज होती है जहाँ पर टू न्यूक्लियाई फॉर्म होते हैं बट दे आर नॉट फ्यूज्ड। उसके बाद यहाँ पर जो सी दिया गया है, ये यू कैन सी बी पार्ट, बी प्रोसेस क्या होगी, डाइकैरियन के बाद कैरियोगैमी। ओके, एंड इफ वी सी टुवर्ड्स द सी पार्ट, डिप्लो फेज के बाद कौन सी होती है, मियोसिस फॉर द रिडक्शनल डिवीजन। हियर यू कैन सी और मियोसिस, और फिर स्पोर फॉर्म होंगे, फिर वापस से हाइफी में कन्वर्जन होगा, माइसीलियम में होगा, फिर प्लाज्मोगैमी होंगी, डाइकैरियन होंगे। दिस साइकिल्स गोज अल्टरनेटली। ओके, so you can understand here with the help of diagram the life cycle of Ascomycetes and Basidomycetes. Okay, we will move towards further question. Now here you can see which of the following class of kingdom fungi are characterized by presence of coinocytic multinucleated and branched mycelium. मतलब हमने देखे थे कि फाइकोमाइसिटीज ही एक ऐसी क्लास है, चार क्लासेस में से। फंगाई के कितने क्लासेस थे, किंगडम फंगाई में कितने क्लासेस डिवाइड किए गए थे, फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, ड्यूट्रोमाइसिटीज एंड वन इज बेसिडोमाइसिटीज। ओके, कौन सा था, फाइकोमाइसिटीज था, एस्कोमाइसिटीज था, बेसिडोमाइसिटीज और ड्यूट्रोमाइसिटीज। ये चार सब किंगडम थे किसके, किंगडम फंगाई के, सॉरी सब किंगडम फंगाई के थे। तो उसमें से ब्रांच और मल्टी न्यूक्लिएटेड कोइनोसाइट किसका प्रेजेंट था, मतलब माइसीलियम ऐसा किसका प्रेजेंट था जिसका माइसीलियम कैसा है, मल्टी न्यूक्लिएट है और ब्रांच्ड है। इफ़ वी टॉक्ड ब्रांच्ड की अगर हम बात करें तो वो असेप्टेड होगा एंड कोइनोसाइटिक मल्टीन्यूक्लिएटेड होगा। इफ़ इट टॉक मैं जैसे आपको बताई हूँ, सेप्टेड का मतलब क्या है ऐसे, और असेप्टेड का मतलब है ऐसे। हमने जो चारों भी सब क्लासेस देखे हैं किंगडम फंगाई के, उसमें जो बाकी के तीन है वो कैसे है,
अनब्रांच्ड है मीन्स सेप्टेड है और कैसे है, मल्टी न्यूक्लिएटेड है। बट फाइकोमाइसीटीज ही एक ऐसी सब किंगडम है या फिर क्लास है जिसमें असेप्टेड और मल्टी न्यूक्लिएटेड कोइनोसाइट प्रेजेंट है। ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फंगाई लैकिंग सेल वॉल इन द माइसेलियम बिलोंग्स टू क्लास। मतलब ऐसा फंगाई जो सेल वॉल को बहुत मतलब उसकी सेल वॉल कैसी होती है, बहुत वीक होती है और दे आर नॉट हैविंग अ क्रॉस सेल वॉल इन दर माइसेलियम। उनके माइसेलियम में क्या नहीं होती है, सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती है। एंड दे बिलोंग्स टू क्लास फाइकोमाइसीटीज। फंगाई की क्लास है फाइकोमाइसीटीज जिनमें सेल वॉल बहुत मतलब माइसेलियम में प्रेजेंट नहीं होती। दे आर लैकिंग अ सेल वॉल इन देयर माइसेलियम। ओके, okay, now we have seen about the kingdom fungi. Now some points or some important MCQs are remaining about the kingdom fungi, so we will begin with next video and then we are going to see about these MCQs. So thank you friends for watching my video.